Good morning. In the previous class, we had learned the treatment of goodwill, treatment of reserves, revaluation account. We also did illustrations related to that. And then we had discussed capital adjustment in case of reconstitution of partnership. So we had completed the topic of reconstitution of partnership. Now, today we will discuss accounting treatment to be done at the time of admission of a partner. As per section 31 of the Partnership Act, a person can be admitted as a partner if it is so agreed in the partnership deed, or in the absence of above, if all partners, all existing partners agree for the admission of the new partner, not otherwise, right? After admission, when a new partner is admitted, then after admission, the new partner gets two main rights. First is the right to share future profits of the firm, and second is the right to share in the assets of the firm. Whenever a new partner is admitted, the profit sharing ratio will obviously change, because now some share of profit is to be given to the new partner also. So how we calculate the new ratio and the gain sacrifice of the old partners, let us see with the help of this illustration. You have to read the wording of the questions very carefully, because a slight change in the wording may change the answer. Ankit and Chunky are partners, sharing profits in the ratio of 3:4. Kiran is admitted for 2/7 share. Calculate new profit sharing ratio and gain or sacrifice of each partner in the following cases. Case A, no other information is given. Case B, Ankit sacrifices 1/3 of his share and Chunky sacrifices half of his share in favor of Kiran. And case C, Ankit will retain his share. मतलब अंकित का शेयर चेंज नहीं होगा. So noted the questions. Okay. Now let us see. Case A, no other information is given. Okay. So after giving 2/7 share to Kiran, how much portion of profit will be left for Ankit and Chunky? 5/7. 5/7, क्योंकि 2/7 का पार्ट है. 7 में से 2 पार्ट्स किरण को दे दिए तो 5 पार्ट्स बच जाएंगे 7 में से. So Ankit and Chunky will share it in their mutual ratio of 3:4. और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो एग्जिस्टिंग जो उनका रेशियो चल रहा था वो उसी में शेयर करेंगे बचा हुआ प्रॉफिट. क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये. So done. ओके. अब ये इस तरह से लिख लो, रिमेनिंग शेयर इनटू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर. अंकित रिमेनिंग शेयर बचा है 2/7 देने के बाद 5/7.
और अंकित का शेयर था 3/7, 3:4 रेशियो था अंकित और चंकी के बीच में। तो 5/7 का 3/7 अब मिलेगा अंकित को। So Ankit's new share will be 15/49. Yes, sir. Similarly, चंकी को बचे हुए 5/7 का 4/7 मिलेगा. So his new share will be 20/49. Yes, sir. और किरण को तो हमें पता है कि 2/7 शेयर मिल रहा है. कॉमन डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसे हम इंटू 7/7 कर देंगे. तो दिस बिकम्स 14/49. Yes, sir. So the new ratio is 15:20 14. 14. What about gain or sacrifice? 3:4. न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके निकलता है गेन या सैक्रिफाइस. अंकित का न्यू शेयर है 15/49, which we have calculated just now, and old share was 3/7. You can say 21/49. So 15 minus 21, Ankit has sacrificed 6/49 share. Yes, sir. Similarly, Chunky's new share is 20/49. Old was 4/7. 4/7 को हम 49 के डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 28 हो जाएगा न्यूमरेटर. सो 20 minus 28 मतलब इसका सेक्रीफाइस है 8/49. Yes, sir. और किरण का तो हमें मालूम है 14/49 गेन है, क्योंकि ओल्ड तो शेयर कुछ था ही नहीं उसका, न्यू पार्टनर है. सो गेन इज 14/49 इन केस ऑफ किरण. सर इसमें किरण का क्यों निकाल रहे हैं हम? गेन और सेक्रीफाइस सभी पार्टनर्स का निकाल रहे हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर जितना भी शेयर न्यू को मिल रहा है वो तो उसका पूरा का पूरा ही गेन है. अच्छा, क्वेश्चन में ईच पार्टनर लिखा है ना, तो Yes. सबका निकालना. यस. ओके सर. Now, if you see carefully, the sum of gain or sacrifice of all partners is always equal to 0. इसमें अगर हम देखें 14 पॉजिटिव है, -6 है, -8 है, तो -6 -8 -14 हो गया, एंड +14 इज 0. तो Yes, sir. जब भी हम सब पार्टनर्स का गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे तो गेन सेक्रीफाइस के न्यूमरेटर्स को अगर हम लेंगे तो उनका सम हमेशा इक्वल 0 होगा. पॉजिटिव नेगेटिव सारे कैंसल आउट होंगे हमेशा. अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है. ओके सर. सर इसमें हम सैक्रिफाइसिंग डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि 3:4 ही होगा? हाँ, वही अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूं. इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट गेन और सेक्रीफाइस इज गिवन, ठीक है, जैसे इसमें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, कौन अपना कितना शेयर दे रहा है, या कौन कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है न्यू पार्टनर को. नथिंग वाज गिवन. इन सच अ केस सेक्रीफाइस रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो. इसमें अगर हम देखें 6/49 अंकित का सेक्रीफाइस है और 8/49 मतलब 6:8 सेक्रीफाइस है. उसे हम सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं 3/4, 3:4. यस सर. ठीक है. सो अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो गेन सेक्रीफाइस बिना कैलकुलेट किए भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो. जो ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा ओल्ड पार्टनर्स का. ठीक है. यस सर. नाउ लेट्स कम टू केस बी. अंकित sacrifices 1/3 of his share. What was his share? 3/7.
3/7, उसमें से माइनस कितना हो गया? 3/7 का 1/3, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो 3/7 इंटू 1/3 ब्रैकेट्स में ये उसने दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 1/7 बचा। 3/7 में से 1/7 उसने दे दिया, तो उसके पास अब न्यू शेयर कितना बचा? 2/7। 2/7। और उसने सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/7। 1/7। वर्डिंग क्वेश्चन की मैं बार बार कहता हूं बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है। अगर यहां पे सिंपली दिया होता अंकित सेक्रीफाइसेस 1/3 शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर नहीं, 1/3 शेयर या फिर 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, तब क्या हो जाता? माइनस, सीधा माइनस। सीधा 3/7 माइनस 1/3 हो जाता। फिर 3/7 का 1/3 नहीं करते। क्लियर? चंकी के केस में हमने एक पार्ट बी में एक करेक्शन की है। अंकित सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड चंकी सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ किरण। सो चंकी का ओल्ड शेयर था 4/7, 4/7 का 1/4 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो अब उसके पास यानी 4 और 4 कैंसिल हो गया, 1/7 इसका मतलब इसने भी सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसके पास शेयर बचा 3/7। Yes, sir. And Kiran gets 1/7 from Ankit, 1/7 from Chunky. So total Kiran को मिल गया 2/7 शेयर। ठीक है, तो उसका ये गेन हो गया 2/7 पूरा का पूरा, बिकॉज ओल्ड वॉज 0। Yes, so the new ratio is 2:3:2. Now case C. अंकित विल रिटेन Yes, sir. शेयर, मींस अंकित का शेयर तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब किरण को जो भी शेयर मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? सारा चंकी से मिल रहा है। ठीक है, चंकी से। यस। सो अंकित ओल्ड शेयर 3/7, unchanged, so no gain, no sacrifice, so new share is 3/7 and gain or sacrifice is 0. Yes, sir. In case of Chunky, 4/7 was old share, पूरा का पूरा किरण को शेयर चंकी से ही मिल रहा है, दैट मींस चंकी इज सैक्रिफाइसिंग 2/7. 7. So remaining share of Chunky now is 2/7 and his sacrifice is also 2/7. Yes, sir. In case of Kiran, 2/7 इसे मिल गया चंकी से, ओल्ड 0 था, so new share is 2/7 and gain is also 2/7 and new ratio is 3:2:2. Yes, sir. सर इसमें जो सैक्रिफाइस अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे ना 2:0:2. नहीं, अगर सैक्रिफाइस इस सी केस में आपको लिखना हो तो सैक्रिफाइस सिर्फ चंकी का है, तो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ सैक्रिफाइस लिखा जाएगा 2/7 चंकी। सर अगर हमें क्वेश्चन बोले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तो मतलब अंकित का हो गया 0, 0:2:2. You can write 0:2 in that case. सर और किरण का -2 नहीं लिख सकते साथ में, 1:-2? नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो अगर पूछा जाता है वो सिर्फ उन्हीं का आएगा जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर गेन ओब्लिक सैक्रिफाइस आपसे पूछा जाता है तो आप सब पार्टनर्स का लिखोगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा है सैक्रिफाइस रेशियो तो वो सिर्फ उन पार्टनर्स का आएगा जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सी पार्ट में हो जाएगा वो अंकित और चंकी 0:2। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन 1 से 12 तक कंप्लीट कर लोगे बुक से। ओके सर। Now let us discuss accounting treatment of goodwill in case of admission of partner. अगर existing goodwill कोई होता है बुक्स में बैलेंस शीट में, what do we do with that? Divide among the partners in their old profit sharing ratio. Yes, we write off the existing goodwill if any
by transferring it to old partners in the old ratio. अगर न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है किसी भी एसेट की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में, ठीक है, उसके लिए लिखो अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। वो अपनी कैपिटल भी लेकर आ रहा है और गुडविल का शेयर भी लेकर आ रहा है। तो एंट्री होगी बैंक और कैश और एसेट जिस भी फॉर्म में वो ला रहा है, डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। Yes, sir. Let's take an example. Suppose the new partner is bringing 1 lakh rupees as capital. ठीक है, सी न्यू पार्टनर है और वो 1 लाख कैपिटल के लिए ला रहा है, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, सपोज फर्म का गुडविल है 5 लाख एंड सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? 5 लाख में 1/4 1,25,000। 1,25,000। ये वो ला रहा है अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए भी, ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए। ठीक है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के आगे आ जाएगा 1,25,000। और बैंक में पूरा पैसा वो थ्रू चेक ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,25,000। क्लियर? यस सर। और अगर यही वो ऐसे ला रहा होता, सपोज 2 लाख रुपीस का फर्नीचर और 25,000 रुपीस कैश में, तब क्या करते? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 lakh and cash account debit 25,000 to seize capital 1 lakh to premium for goodwill 1,25,000. Excellent, very good. Then we transfer or adjust the goodwill brought by new partner. उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उसके आगे लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट। पिछली एंट्री में जितने अमाउंट से प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ था, उतने ही अमाउंट से इस एंट्री में डेबिट हो जाएगा। यस सर। फिर लिखो स्टार डाल के न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट। स्टार इसलिए डाल रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तभी ये आएगा पोर्शन एंट्री में, नहीं तो नहीं आएगा। मींस अगर कुछ गुडविल का प्रीमियम वो नहीं लाया है तब ये आएगा, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इस केस में ये ध्यान रखना, इट हैज टू बी करंट अकाउंट ओनली, नॉट कैपिटल अकाउंट। इट कैन नॉट बी कैपिटल अकाउंट। ओके सर। देन सर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तब भी करंट अकाउंट ही? हाँ, तब भी करंट अकाउंट ही, क्योंकि क्वेश्चन अगर हमें स्पेसिफिकली कह रहा है कि वो कैपिटल के लिए इतना अमाउंट लाया है और उसकी कैपिटल में से हम डेबिट करके रिड्यूस कर दें कैपिटल, तो वो लॉजिकली ठीक नहीं लगता। सेकेंड रीजन इज, अगर बाद में कैपिटल्स एडजस्ट होनी हो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, तो उसकी कैपिटल, तो अगर यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसकी कैपिटल तो रिड्यूस हो जाएगी, तो फिर वो कैपिटल्स का प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। इसलिए न्यू पार्टनर का गुडविल एडजस्टमेंट जो होगा वो उसके करंट अकाउंट के थ्रू करना है। If the new partner has not brought a portion of goodwill, then not otherwise. Then स्टार डाल के gaining old partners capital accounts debit। हो सकता है ओल्ड न्यू पार्टनर के आने के बाद न्यू रेशियो कुछ इस तरह से बनाओ कि किसी पुराने पार्टनर का भी गेन हो रहा हो। अगर ऐसा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को कर लेंगे, उसमें करंट जरूरी नहीं है। उसमें करंट अकाउंट तभी करेंगे जब हमें फिक्स्ड कैपिटल्स लिखा हो, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे उसके। और ये सारे अमाउंट जो हमने डेबिट किए, ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एब्सोल्युटली, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में हम इन्हें ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, और ये पूरी एंट्री होगी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यस सर। अब जो हमने एग्जांपल लिया था उसे कंटिन्यू करते हैं। 1,25,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट कर देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यस सर। ठीक है, सपोज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 4:1, तो 2A's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीस 1 लाख। और 2B's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 25,000। यस सर। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज वो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000 में से सिर्फ 1 लाख लाया, 25,000 नहीं लाया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सीज करंट अकाउंट 25,000 टू एज कैपिटल। नहीं सीज करंट अकाउंट डेबिट में होएगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट 25,000 और फिर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही हो जाएगा। यस सर। सपोज वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं है, फिर पूरा अमाउंट सी के करंट अकाउंट में 125 से डेबिट। वेरी गुड। तो पहले वाली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट नहीं होगा और थर्ड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट भी नहीं होगा। पूरा का पूरा अमाउंट सीज करंट अकाउंट डेबिट 1,25,000 और फिर 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस सर। सपोज ए और बी में से ए भी गेन कर रहा होता तो और सपोज ए का गेन है 1/10, तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते कितने अमाउंट से? 50,000, क्योंकि हमने 5 लाख फर्म की गुडविल ली थी। एक्सीलेंट, क्योंकि 5 लाख फर्म की गुडविल है तो उसका 1/10 50,000 और 1,25,000 आए सी से, तो यानी टोटल 1,75,000 सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता, सॉरी बी के कैपिटल अकाउंट में। यस क्लियर है सर। यहां तक? हाँ जी सर। गुड। अब ये लिखो, वरुण एंड प्रदीप आर पार्टनर्स, illustration 2, sharing profits in the ratio of 5:3. New partner Vikram invests rupees 22,60,000 as capital. Goodwill of the firm is valued at rupees 16 lakh. Pass journal entries in the following cases. A. Varun gives 1/5 of his share and Pradeep gives 1/3 of his share to Vikram. Vikram brings required premium for goodwill. Case B, again Varun gives 1/5 of his share, Pradeep gives 1/3 of his share to Vikram. Vikram brings rupees 3 lakh premium for goodwill. And case C, new profit sharing ratio is given 3:4:1 and Vikram does not bring premium for goodwill. ये लिख लो पहले पूरा, फिर करते हैं, और जर्नल का एक फॉर्मेट बना लो पूरे पेज का। ओके सर। अगर फॉर्मेट प्रॉपर नहीं हो तो उसके 25% मार्क्स डिडक्ट होते हैं सीबीएसई रूल के हिसाब से। ओके सर। सर डन, फॉर्मेट बना लिया। ओके, पहले हम वर्किंग नोट्स में गेन या सैक्रिफाइस लिख लेते हैं। केस ए और बी में तो गेन सैक्रिफाइस की सेम वर्डिंग दी हुई है। वरुण गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, प्रदीप गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो वरुण का सैक्रिफाइस कितना हुआ? उसका शेयर था 5/8, उसका 1/5 उसने दे दिया, तो 5 कैंसल हो गया। दैट मीन्स वरुण का सैक्रिफाइस है 1/8। प्रदीप का शेयर था 3/8, जिसमें से 1/3 शेयर उसने दे दिया, तो उसका सैक्रिफाइस कितना है? 1/8। उसका भी 1/8।
और दोनों का सेक्रीफाइस 1/8 है, तो इसका मतलब विक्रम का गेन है 2/8। दोनों से उसे 1/8 मिल रहा है। यस सर। ठीक है, 2/8 या हम कह सकते हैं 1/4 उसका गेन है। केस सी में सीधे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो गेन या सेक्रीफाइस न्यू माइनस ओल्ड करके हम निकालेंगे। वरुण का सेक्रीफाइस न्यू शेयर है 3/8, 3:4:1 है, तो 3/8। ओल्ड था 5/8, दैट मीन्स सेक्रीफाइस इज 2/8। 2/8। प्रदीप के केस में न्यू है 4/8, ओल्ड था 3/8, तो इसको गेन हो गया 1/8 का। ठीक है, यस सर। ये मैं कह रहा था कि कई बार हो सकता है कि पुराने पार्टनर को भी किसी को गेन हो रहा हो एडमिशन के बाद। और विक्रम का गेन कितना है? 2/8। 1/8, क्योंकि न्यू शेयर में सीधे हमें दिया हुआ है ना 3:4:1। पहले तो इसका अच्छा कुछ अच्छा। शेयर था नहीं, अब 1/8 इसे मिल रहा है। यस सर। केस ए में फर्स्ट एंट्री क्या होगी जब वो कैपिटल और गुडविल लेकर आया है? सर एक मिनट। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 26,60,000 to Vikram's capital account 22,60,000 to premium for goodwill account 4 lakh। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट 26,60,000 कैपिटल और गुडविल मिला के, टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट 22,60,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4 लाख। कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम ब्रॉट। यस सर। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 4 लाख, और वरुण और प्रदीप के कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, किस रेशियो में? उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। दोनों का सेक्रीफाइस 1/8 है, मैं मींस 1:1 है, सो 2 लाख दोनों के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख कैसे आया था? सर आपकी आवाज कट रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल 4 लाख कैसे आया? सर 16 लाख का 2/8। वेरी गुड, क्योंकि 16 लाख फर्म का गुडविल है और 2/8 या 1/4 इज द गेन ऑफ विक्रम, तो हिज न्यू शेयर इज 1/4। 1/4, दैट इज वाई। तो 16 लाख का 1/4 4 लाख। केस बी, एंट्री फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट। अब इसमें क्या है, वो 3 लाख प्रीमियम ला रहा है, सिर्फ 4 लाख पूरा नहीं ला रहा, 3 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट 25,60,000 to Vikram's capital account 22,60,000 to premium for goodwill account 3 lakh। वेरी गुड। सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख आएगा अब, और इसलिए बैंक में भी 1 लाख कम हो गया, 25,60,000, बाकी सेम। यस सर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 3 lakh। Vikram's current account debit 1 lakh to Varun's capital account 2 lakh to Pradeep's capital account 2 lakh। वेरी गुड। 3 लाख तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। 1 लाख जो वो प्रीमियम का शेयर अपना नहीं लाया है, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। सो विक्रम्स करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख to Varun's capital account, to Pradeep's capital account 2 lakh each. Goodwill premium transferred and capitals adjusted for goodwill. Yes sir। Now case C, Vikram does not bring premium for goodwill. So
Sir, bank account debit 22,60,000 to Vikram's capital account 22,60,000. Yes. Bank account debit to Vikram's capital account 22,60,000. और इस केस में उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, क्योंकि उसका न्यू शेयर जो दिया हुआ है दैट इज 1/8. So sir 2 lakh. तो 16 लाख का 1/8 हो जाएगा 2 लाख. तो क्या करेंगे उसका शेयर ऑफ गुडविल के लिए? डेबिट कर देंगे विक्रम्स करंट अकाउंट 2 लाख से. वेरी गुड. विक्रम्स करंट अकाउंट डेबिट 2 लाख. इस केस में प्रदीप का भी गेन हो रहा है कितना? 1/8. तो प्रदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख से. वेरी गुड. प्रदीप के कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे 2 लाख रुपीज, उससे भी शेयर ऑफ गुडविल लेना है. और ये दोनों शेयर ऑफ गुडविल मिल किसको जाएंगे? टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख. क्योंकि 2/8 उसका सैक्रिफाइस है. गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल्स. क्लियर? यस सर. अब आप क्वेश्चन 26 तक कंप्लीट कर लोगे. ओके सर. Now let us discuss. There is sometimes hidden goodwill in the question, means value of goodwill is not given directly, but you are asked to find out the value of goodwill. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एडमिशन के केस में? फर्स्ट स्टेप लिखो, फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज हर शेयर. सपोज न्यू पार्टनर आ रहा है 10,000 रुपीज लेकर 1/5 शेयर के लिए, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो गई? 50,000. Yes, very good. 10,000 into 5/1, that is 50,000. Second step, find out net worth of the firm. तो कैसे निकालेंगे? ये हमने गुडविल कैलकुलेशन में भी डिस्कस किया था. टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस रीवैल्यूएशन गेन. और अगर रीवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली. हाँ, आप पूछो क्या डाउट? व्हाट वर यू आस्किंग? फिक्टिशियस एसेट्स का हाँ, वो क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स जो जिनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जो कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में एसेट्स में अपीयर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव अ डेबिट बैलेंस. ये पिछली क्लास में भी शायद हमने डिस्कस किया था. हाँ जी सर. तो इसमें बस एडवर्टीजमेंट वाला आता है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है. ओके सर. ठीक है. सपोज नेटवर्थ ऑफ द फर्म आ रही है हमारे पास 30,000. तो गुडविल क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो फर्स्ट स्टेप में हमने निकाली, माइनस नेटवर्थ ऑफ द फर्म. तो हमने जो भी एग्जांपल लिया 50,000 माइनस 30,000, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 20,000. यस सर. For example, A and B are partners with capitals 20 lakh and 30 lakh. New partner C brings rupees 15 lakh as capital for 1/5 share in profits. General reserve is rupees 5 lakh. तो फर्स्ट स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हुई? 75 lakh. 15 lakh into 5. Yes, 15 lakh into 5, 75 lakh हो गई. नेट वर्थ ऑफ द फर्म 70 lakh. 20 लाख ए की कैपिटल, 30 लाख बी की कैपिटल, 15 लाख सी की कैपिटल. यहां तक हो गया 65 लाख और रिजर्व भी है 5 लाख, वो भी ऐड हो जाएगा. सो नेट वर्थ ऑफ द फर्म इज 70 लाख. सो वैल्यू ऑफ गुडविल इज
5 lakh. रुपीज 5 लाख. ठीक है. एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का और हमें कैपिटल्स को भी एडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, देन फॉर हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी नहीं हुई. इफ नो बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, देन we will calculate total capital of the firm as new partners capital. By default, we will calculate on the basis of new partners capital. So new partners capital into reciprocal of new partners profit share will give us total capital of the firm. And rest you already know how to do the capital adjustment. Now write down this question, illustration 3. Palak and Divya are partners sharing profits in the ratio of 1:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 was capitals दी हुई है, workman compensation reserve is given, then bills payable are given, asset side पे land and building, debtors, stock, cash in hand, cash at bank is given. Rashi is admitted bringing a capital of rupees 2,50,000 and it is decided to share profits in the ratio of 2:1:2 from 1st April 2020. It is also agreed to, first point, appreciate land and building by 5%. तो land and building के आगे मार्क कर लो 1. Create provision for doubtful debts. So debtors के आगे 2.